Tibia, I'm on slide 3. You are seeing my screen. Over here, the position of the tibia is the interior side of the leg, which is neck parallel to the fibula. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Okay. So the tibia, which is the shin bone, is the second largest bone in the body. Flare outside, first largest bone कौन सी है? Femur. Yes, femur. Yes, femur. And is the both end provides the increase for the articulation of the weight transfer. So tibia have three. We divide tibia into three parts. First of all, it's the upper superior proximal end widens to form the medial and the lateral condyles, just like the condyles of the femur. We have condyles of tibia too for the articulation of the knee joint. So, and posterior forming a relatively flat superior articular surface, which is or the tibial plateau भी कहते हैं जिसको हम superior इसकी जो surface होती है ना उसको tibial plateau भी कहते हैं जो कि tib का top होगा. So, मैं आपको ना अभी tib भी दिखाऊंगी. Let me finish with the slides as soon as I can do that. So, the posterior, I'm on the slide number 5. Yes, please repeat. किसी ने कुछ कहा है अभी? I'm on the slide number 5. You can see these are the lateral condyle and the medial condyle, and this is the tibial plateau. Slide number 6 is the articular surfaces are separated by the intercondylar eminence. दो condyles के दरमियान की जो surface होगी उसको intercondylar eminence बोलते हैं because eminence means it's a and it is formed by the two intercondylar tubercles. In इस prominent part इस eminence के ऊपर दो अलग से बने होते हैं. Most prominent parts like you can say peaks जिसको हम कहते हैं कि ये है tubercles. जिसको हम medial and lateral का नाम देते हैं and is flanked by relatively anterior and posterior intercondylar areas. अब tubercles fit into the intercondylar fossa, जो कि intercondylar fossa किसका होता है? femur का. ठीक है? Femoral condyles, intercondylar tubercle area provide the attachment for the menisci. Menisci क्या होते हैं? These are the cushion pads in the knee joint which reduces friction. So next one is the intercondylar tubercles area provide the attachment to the menisci and the principal ligaments of the knee. Principal ligaments of the knee जो होते हैं ना वो interior and posterior ligament of the knee होता है. Interior जो इसके ligaments होते हैं जब आप knee joint पढ़ेंगे then you will come to know about this, which holds the femur and tibia together, maintaining the contact between the articular surfaces. The anterior lateral aspect of the lateral tubercle condyle bears anterior lateral tibial tubercles. अभी जो हमारे पास जो lateral side है ना interior lateral side वहाँ पे एक tubercle होता है जिसको हम क्या कहते हैं Jurdy's tubercle. ठीक है जो कि articulating surface से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करके होता है. It provides the distal attachment for a dense thickening of the fascia. यहाँ पे हमारी distal attachment होती है ये you can see over here. This is the Jurdy's tubercle. This is on the lateral side. So अभी मैंने ना आपको ना बोन दिखाऊंगी. आई एम इन कॉलेज सो आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको ना बोन से थोड़ा सा बता दूं. जी बच्चे आपने क्या कहा है अभी? Someone say something. किसी ने अभी कुछ कहा है प्लीज? किसी ने मैम ने कहा ये गलती से माइक ऑन हो जाता है. ओके सो अभी जो ये टिबिया का हेड मैं आपको दिखा रही हूँ स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला हेड है ना
ठीक है, ये है इसको कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टिबिया। और ये जो दो पीक्स नजर आ रही है ना, दीज ट्विन पीक्स आर कॉल्ड, व्हाट दे आर कॉल्ड, these are called two intercondylar tubercles, median and laterally. These are tubercles. So this is the medial condyle, this is the lateral condyle, this one, this is anterior intercondylar area, ये intercondylar area is इसके दरमियान, ठीक है। और ये है जर्डीज tubercle over here on lateral side, जिस साइड पे फेबुला होती है, ठीक है। ये नीचे जो है थोड़ी ब्रेक लाइन आती है, इसका अभी कोई नहीं है। तो this is over here, this is the Dutchess tubercle inferior to the articulating surface, provide to the distal attachment for the dense thickening of the fascia, जिसके ऊपर आके fascia lata होता है, ठीक है। जो fascia lata होता है ना lateral thigh के ऊपर, one. So कोई मुझे fascia lata की बताएगा, attachments आप लोग पढ़ चुके हैं था। जी मोहम्मद तलहा आए हैं आज? Where is मोहम्मद तलहा? जी मैम। जी मोहम्मद तलहा, क्या हाल है आपका? जी ठीक हूँ मैम, शुक्र है आपका। हाँ जी, मुझे आप फेशियल लाटा की अटैचमेंट्स बताएंगे? जी facial lata, superiorly the facial lata is attaches to and is continuous with the inguinal ligament, peak arch, body of pubis and the pubic tubercle anteriorly. अच्छा, And iliac crest laterally and posteriorly, sacrum coccyx, sacrotuberous ligament, ischial tuberosity or the ischiopubic ramus posteriorly and anteriorly. And inferiorly, the fascia lata attaches to and is continuous with most parts of the bones around the knee and the deep fascia of the leg inferior to the knee. तो टेंसर फेशियल लाटा क्या होता है? ये तो मसल होता है। इसके साथ नहीं अटैच होता कुछ? पता, वो तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट होता है ना, जो अपना लेटरल साइड पे बनता है बाय द थिकनिंग ऑफ द फेशिया लाटा। ठीक हो गया। और थिकनिंग ऑफ द फेशियल लाटा जो होता है ना, वही इलियोटिबियल ट्रैक्ट जो है ना, वही जर्डीज टुबरकल के ऊपर आता है, ठीक है। जो फेशियल लाटा जो वैसे होता है ना, वो इट इज अ काइंड ऑफ टाइट्स ऑन द थाई। जिस तरह हम टाइट्स पहनते हैं, इसी तरह जैसे पैंट्स पहनते हैं, इस तरह जो है ना फेशियल लाटा आता है। लेकिन जो टेंसर फेशियल लाटा और जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट होता है ना, वो जर्डीज टुबरकल के ऊपर आके अटैच होता है, ठीक है। जी ठीक हो गया, थैंक यू तलहा। So यू वेलकम मैम। okay, so next हमारे पास क्या है कि the lateral condyle also bear the fabular articular facet, ठीक है। अभी हमारे पास ऊपर हम लोग इसको पढ़े थे, हमारे पास हेड, इसका अपर एंड के ऊपर टिबिया के हमारे पास फिबुला की अटैच हो रही है। तो जहाँ पे ये फिबुला अटैच होती है ना, इसको हम कहते हैं फेसेट, जो कि हम इसको फेबुलर आर्टिकुलर फेसेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं बन रहा, but it is just attached to the tibia. Posterior and inferior aspect of the head of the fibula, shaft is somewhat triangular. अब shaft जो होती है ना tibia की, वो kind of a triangular होती है because गोल नहीं होती, because it's not round. It is a more prominent or subcutaneous anteriorly, which is the interior border. So it is having three surface borders. First is the medial lateral, medial border, lateral or intraosseous border, and the posterior border. So medial border के ऊपर क्या होगा? medial border पे जो होंगे ना muscles होंगे, lateral intraosseous border के ऊपर intraosseous membrane होगी, posteriorly जो होगा ना हमारी calf के muscles होंगे, ठीक है। So अभी मैं आपको हेड दिखा देती हूँ टिबिया का, फिर हम शेफ्ट पे आते हैं।
सबको ये नजर आ रहा है? Over here, this is top of the tibia. This one. ठीक है? अभी ये जो टिबिया है ना, ये मीडियल साइड है, मीडियम मेलियोलस है, तो ये जो टिबिया होगी ये हमारी राइट साइड की टिबिया होगी, ठीक है? तो राइट साइड की टिबिया है, तो ये दिस इज द medial condyle and this is the lateral condyle. So this one in बिल्कुल दरमियान वाला पार्ट है ना, इसको हम कहेंगे इंटरकॉन्डाइलर एरिया। यहाँ पे ये दो एमिनेंस है, these two peaks, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको? इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। हाँ जी, two intercondylar tubercles or medial or laterally, these are called the anterior and posterior intercondylar areas, ठीक है? तो अभी ये जो है मीडियम मेलियोलस है, तो दिस इज द लेटरल साइड, दिस लेटरल साइड ओवर हियर, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क हुआ होगा, आई डोंट नो आपको नजर आएगा कि नहीं, बट दिस इज ओवर हियर। यहाँ पे जो है ना ये फिबुला आके अटैच होती है, दिस इज द हेड ऑफ फिबुला ने यहाँ पे आके अटैच होता है, दिस इज हेड ऑफ फिबुला, ठीक है? तो ये सिर्फ ऐसे करके यहाँ पे अटैच हो जाएगी लाइक दिस। यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, कोई अलग से कुछ भी नहीं बना हुआ, लेकिन फिबुला ने यहाँ पे आके अटैच हो जाना है, तो इसको क्या कहेंगे? फिबुलर फैसेट। और वैसे तो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है एंटीरियरली, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द टिबिया, जिसको हम ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है? तो यहाँ पे जर्डीज ट्यूबरकल भी है, which is over here, which is on the lateral side, ठीक है? जर्डीज ट्यूबरकल हो गया, फैसेट फॉर फिबुला हो गया, टिबियल ट्यूबरोसिटी होगी, ये जो है कंडाइल्स, दिस इज द मीडियल, दिस इज द लेटरल, और ये इंटरकंडाइलर एमिनेंस होगी, यहाँ मीडियल और लेटरल ट्यूबरकल्स होंगे, ठीक है? यहाँ पे मेनिस्काई लगी है आके यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे जो है ना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है ना लिगामेंट्स आते हैं नी जॉइंट के, ठीक है? जब आप नी जॉइंट आएंगे तब फिर आप पढ़ लेंगे। किसी को अभी तक यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अभी तक किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? जी मोहम्मद एहसन। मैंने ऐसे ना हमारे साथ हैं। मैम मेरा एक सवाल पूछ लूं? हाँ जी पूछे। मैम ये जो टिबियल प्लेटियो, ये आर्टिकुलेटेड एरिया? हाँ जी, ये आर्टिकुलेटिंग एरिया है। आर्टिकुलेशन किसको कहते हैं? जो दूसरी चीज हाँ जी, जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। हाँ जी, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि जो दूसरी चीज के साथ ना कोई रिलेशनशिप या कोई साथ में कोई ताल्लुक बना रहा हो, ठीक है? उसको कहते हैं आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेटिंग एरिया और सरफेस जो होगी, हम उस चीज को कहेंगे कि जो कि नी जॉइंट के अंदर जो फीमर उसके साथ फीमर के कंडक्ट के साथ ना रिलेशनशिप बनाए, लाइक उसके साथ अटैच हो, तो उसको हम आर्टिकुलेशन कहेंगे, ठीक है? मूवमेंट के अंदर जो हेल्प करेगी, ठीक है? तो आप वर्ड पे चला करो कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है, और उससे समझ लिया करो कि लाइक वर्ड इट विल बी, ठीक है? जी एहसन अली, कहाँ हैं आप? चैट बॉक्स में ही आ जाए। मोहम्मद एहसन अली MCR यहाँ पे माई क्लास के हैं। आप किधर चले गए हैं? अभी तो आप मुझे चैट बॉक्स में कह रहे थे रीडिंग हो रही है। ओके, आई थिंक मैम उसका नेट का इशू है। ठीक हो गया। फिर उसको कहना नेट तो ठीक कर ले, मैम रीडिंग नहीं करा रही, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेफ्ट, ठीक है? इसकी शेफ्ट की जो है ना हमारे पास बॉर्डर्स और सरफेसेस हैं। तो बॉर्डर्स जो मैम हाँ जी बताएं। मैम इससे पहले ना अटैचमेंट्स थोड़ी दोबारा बता दें। कौन सी और अटैचमेंट? बता दें।
अटैचमेंट्स और जो आप सर्फेसेस बता रहे थे ना ट्यूबर्स कहाँ पे होते हैं, वो वाली चीज समझ नहीं आई। कौन से टेबल्स नहीं समझ आए आपको? मैम जो आप बोन स्ट्रक्चर्स बता रही थी ना, गडी ट्यूबरकल, और मतलब किस तरह से हाँ लगते जी, हैं कहाँ, वो समझ नहीं आया। वो समझ नहीं आया आपको? अभी नहीं शेफ्ट पे हालू, फिर उसके साथ दूसरा हेड भी करा देती हूँ, ठीक है? मैम। हाँ जी। शेफ्ट के ऊपर है कि हमारे पास ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन हैविंग द थ्री सर्फेसेस एंड बॉर्डर्स व्हिच इज मीडियल इंट्रोसियस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अभी हम आ जाते हैं इंटीरियर बॉर्डर के ऊपर, ठीक है? इंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया जो है ऑब्वियसली ये जो होगा इंटीरियर साइड के ऊपर होगा, और जो है ना ये आप अपने हैंड से ना अपने टिबिया का इंटीरियर बॉर्डर भी फील कर सकते हैं। दिस इज द सबक्यूटेनियस पार्ट। और यहाँ पे जो है ना मतलब हर कोई अपना इंटीरियर बॉर्डर टिबिया का ना अपना खुद पेट कर सकता है, ठीक है? ये इतना प्रोमिनेंट होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर्स जैसे टू द मीडियल सरफेस ऑफ आर सबक्यूटेनियस थ्रू आउट देयर लेंथ एंड आर कॉमनली नरिशन नॉन एनालिटिकली। इस क्वेश्चन कहते हैं द सुपीरियर एंड इज द इंटीरियर बॉर्डर इज ब्रॉड, जिसको हम क्या कहते हैं टिबियोसिटी प्रोवाइड द डिस्टल अटैचमेंट फॉर द पैटेलर लिगामेंट। पैटेलर लिगामेंट किस लिगामेंट से बनते हैं? आप लोगों ने थाई के मसल्स पढ़े? पैटेलर लिगामेंट किस लिगामेंट से बनते हैं, किसी को पता है? क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। क्वाड्रिसेप्स लिगामेंट। हाँ जी, हाँ जी, जी बहुत अच्छे। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के जो 4 टेंडन्स आते हैं ना वो मिलकर पैटेलर लिगामेंट बनाते हैं, जो कि आके किसके ऊपर लगता है? टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर लगता है, which inferior margin of patella and the tibial tuberosity, ठीक है? तो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर आके लगता है। शेफ्ट जो है टिबियल शेफ्ट इज थिनेस्ट एट द जंक्शन ऑफ द मिडिल एंड डिस्टल थर्ड। अच्छा, एक जगह मतलब बिल्कुल मिडिल से आके ना ये और वहां पे आके टिबिया जो होती है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। एंड द डिस्टेंस टिबिया इज स्मॉलर देन द प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है? जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो टिबिया का वो थोड़ा छोटा होता है एंड फ्लेयरिंग ऑन मीडियली, और वहां पे मीडियल मेलियोलस बनता है जो कि मिडिल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो जो एनाटॉमिकल लोकेशन हम की ना इसके मीडियल मेलियोलस से ही डिटरमिन करते हैं, क्योंकि जो बाहर को पार्ट निकला हुआ है ना टिबिया का वो मीडियल साइड के ऊपर आना होता है, ठीक है? जिसको हम मीडियल मेलियोलस कहते हैं। ये लोअर एंड आ गया हमारे पास। ये ना अभी मैं सारा कंप्लीट करके ना बोन, फिर आपको ना इसकी बोन की सारी ना इसकी अटैचमेंट्स करवाती हूँ, पार्ट्स भी दोबारा कराती हूँ, ठीक है? ये लोअर एंड आ जाता है यहाँ पे इंफीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट एंड द लेटरल सरफेस ऑफ द मिडिल आर्टिकुलेट्स विद द टैलिस, ठीक है? अभी ये है हमारे पास लोअर एंड, ठीक है? ये आता है हमारा मीडियल मेलियोलस। अब देखिए टिबिया जो है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी बाहर को निकल आती है, और इस बाहर निकली होती है ना इसको हम कहते हैं मीडियल मेलियोलस, ठीक है? यहाँ पे ये इसने ना बताया हुआ है कि ये फिबुलर नॉच है, जहाँ पे आगे ऊपर फिबुलर क्या होता है? फिबुलर सेट होता है, और नीचे क्या होती है? नॉच होती है। दिस इज ग्रूव फॉर द टिबिया posterior and the flexor digitorum longus tendon, ठीक है? ये यहाँ पे टेंडेंस आ रहे हैं, अभी मैं टेंडेंस वगैरह नहीं करवा रही, लेकिन ये डायग्राम में लिखे हैं तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ठीक है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होती है कि जो सरफेस जो है ना दूसरी बोन की सरफेस के साथ मिलके ज्वाइंट बनाए और उस ज्वाइंट में उसका रोल हो, ठीक है? तो उसको हम कहेंगे आर्टिकुलेशन, ठीक है? जो आर्टिकुलेशन में हेल्प करे, ठीक है? आर्टिकुलेशन क्या मतलब क्या होता है कि मूवमेंट में हेल्प करे। तो आर्टिकुलेटिंग फेस फॉर द मीडियल मेलियोलस, ठीक है? ये जो इनर वाली सरफेस होगी ना मीडियल मेलियोलस की, इसको हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहेंगे। ये इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस आ गई है। अभी मैं फिबुला पे नहीं जा रही, ठीक है? ये साथ में फिबुला पड़ी हुई है। अभी हम आ जाते हैं इंट्रोसियस बॉर्डर के ऊपर। इंट्रोसियस बॉर्डर जो मैंने क्या बताया था कि लेटरल साइड के प्रेजेंट होता है टिबिया के ऊपर, जो कि शार्प होता है, वेरी गिव अटैचमेंट टू द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, ठीक है? ये हमारे पास टिबिया पड़ी हुई है, ठीक है? हमारे ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है, और ये जो है ये इसका क्या है? इंट्रोसियस बॉर्डर है, ठीक है? और ये जो है इसका मीडियल साइड के ऊपर इसका क्या होगा? मीडियल बॉर्डर। इंट्रोसियस बॉर्डर जो है ना ये इंट्रोसियस बॉर्डर ऑफ फिबुला के साथ ना अटैच होता है थ्रू इंट्रोसियस मेम्ब्रेन,
यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, वो टिबिया और फिबुला को दोनों को ना आपस में कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये वाली पिक्चर जो है ना ये काफी बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल भी है। दिस इज अ मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। ये जो है इसकी है सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जिसको जो कि है हमारी मीडियल साइड का। ठीक है, मीडियल कंडाइल है, ये लेटरल कंडाइल है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो जर्डीज ट्यूबरकल है, दिस वन, जो कि फिबुला के साथ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिखा नहीं हुआ इस पे, ये पोस्टीरियर साइड है और ये इंटीरियर साइड है। इंटीरियर साइड के ऊपर हमारे पास जर्डीज ट्यूबरकल है, दिस वन, और ये हमारे पास टिबियल ट्यूबरसिटी है, ये भी इंटीरियर साइड के ऊपर है। तो ये ऑब्लिक लाइन, थोड़ी सी ऑब्लिक लाइन आती है यहाँ पे। जो लेटरल सरफेस है ये इंट्रोसिक बॉर्डर है, ये इंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आती हूँ, फिर मैं आपको पूरी बोन अभी ये खत्म करके ना शेफ और इसके बॉर्डर्स फिर मैं ये करवाती हूँ। ठीक है, inferiorly the sharp border is replaced by the groove, the fibular nerve that accommodates and provides the fabric attachment to the distal end of the fibula. ठीक है, फिबुलर नॉच होती है यहाँ पे इंट्रोसियस बॉर्डर के ऊपर, जो कि नीचे वाली साइड पे। अभी मैंने ये दिखाई थी फिबुलर नॉच, दिस इज कॉल्ड फिबुलर नॉच। ठीक है, ये एंड इसके लोअर एंड के ऊपर आती है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर। ये टिबिया में पोस्टीरियरली दिखाई गई है। ठीक है, पोस्टीरियरली टिबिया के ऊपर जो है ना सोलियर लाइन होती है। ठीक है, इंटीरियरली क्या होता है, ट्यूबरकल होता है, और पोस्टीरियरली हमारे पास सोलियर लाइन होती है व्हिच रन्स इंफीरियर मीडियली विद द मीडियल बॉर्डर, और ये मीडियल बॉर्डर के साथ आके अटैच हो जाती है। ठीक है, दिस इज अ सोलियर लाइन, सोलियर लाइन, दिस वन। ये सोलियर लाइन जो है ना ये स्पाइरल आती है। ठीक है, एक साइड से निकल के दूसरी साइड पे आती है। ये लेटरल साइड से वैसे मीडियल साइड की तरफ आती है, और दिस इज, इसको हम सोलियर लाइन इसलिए कहते हैं, यहाँ पे सोलियस मसल आके होता है। ठीक है, तो the line is formed in the relationship to the epineurotic origin of the soleus muscle, approximately 1/3 of the way down the shaft. ठीक है, over here, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ये पोस्टीरियर साइड है टिबिया की, ये इंटीरियर साइड है। पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास ये सोलियर लाइन है, ये इंट्रोसियस बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये टिबिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, सोलियर लाइन पोस्टीरियर पे है। अभी ये इसने बताया है कि न्यूट्रिएंट फोरामेन, पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास एक फोरामेन होती है टिबिया के ऊपर, जिसको हम न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से चल रहा है कि ये जो है ना इसको क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पैसेज ऑफ द मेन आर्टरी करवाती है जो सप्लाई द प्रॉक्सिमल एंड इट्स मैरो। ठीक है, बोन के अंदर एक रेड मैरो होता है, इसके अंदर टिबिया के अंदर भी होता है, बिकॉज एक वैसे भी हमें पता है कि बोन जो होता है ना एक एपिफिजियल लाइंस होती है, एपिफिजियल पार्ट होता है। एपिफिजियल पार्ट जो होता है ना वो ही ग्रो करता है। ठीक है, जब आपकी लेंथ मतलब जब आपकी हाइट इंक्रीज कर रही होती है ना, तो आपका जो एपिफिजियल पार्ट होता है ना बोन का, वहां पे रेड मैरो पड़ा होता है और वो ग्रो करता है, आपकी लाइन आपकी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है ना, ये जो एपिफिजियम के ऊपर आके जरूर इसको सप्लाई करेगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके आगे क्लिनिकल्स हम पढ़ेंगे ना, तो न्यूट्रिएंट फोरामेन के ऊपर जो अगर आर्टरी के कोई कुछ मसला हो जाता है ना, मतलब फ्रैक्चर हो जाए और उसकी न्यूट्रिएंट आर्टरी डैमेज हो जाए, तो उसका ना फ्रैक्चर का हील होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फॉर द पैसेज ऑफ द मेन आर्टरी अभी हम ये देख लेते हैं। वैसे तो ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है, ये जब आप पढ़ेंगे ना ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब,
वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ इसको आपको रेफरेंस देने के लिए बता रही हूँ कि ये पोप्लिटेल आर्टरी आती है, और पोप्लिटेल आर्टरी जो से ना बनाती है हमारे पास ये पोस्टीरियर टेल आर्टरी। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है ना न्यूट्रिएंट आर्टरी टिबिया जा रही होती है। ठीक है, ये इंटीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है वो इंटीरियर साइड पे चली जाती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है वो पोस्टीरियर रहती है, तो यहाँ पे इंटीरियर आ जाती है। ठीक है, अभी ये जो है ना ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सी स्लाइड है। यहाँ पे जो है ना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर आप देख सकते हैं ये एक साइड पे टिबिया पड़ी हुई है, एक साइड पे फिबुला पड़ी हुई है। फर्स्ट जो टिबिया है वो इंटीरियर बॉर्डर इंटीरियर ही है। ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर और मिड बॉर्डर के दरमियान जो है हमारे पास मीडियल सरफेस है। ठीक है, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर, दिस वन, एंड दिस इज द मीडियल, और इन दोनों के दरमियान जो होगी वो मीडियल सरफेस होगी। ठीक है, तो ये जो है इंट्रोसिस बॉर्डर है, ये इंट्रोसिस मेम्ब्रेन है। ठीक, और इंटीरियर और इंट्रोसिस बॉर्डर के दरमियान लेटरल सरफेस है, और जो यहाँ पे इंट्रोसिस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस आएगी ना वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ बोन, फिर हम फिबुला पढ़ते हैं। मैम ये डायग्राम दोबारा बताएं। बच्चे इसमें जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया है टिबिया का। ठीक है, अभी मैं फिबुला नहीं करा रही, मैं दोबारा फिबुला पढ़ा के आपको फिबुला कराऊंगी। आप सिर्फ जो है ना दिस पार्ट ऑफ द टिबिया का ना ये वाला जो पार्ट है ना इस पे फोकस करें। यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये इंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, बॉर्डर्स पहले याद करने हैं, सरफेस बाद में याद करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको बॉर्डर का नहीं पता तो आपको सरफेस ही नहीं पता चलता। ये जो इंटीरियर बॉर्डर है ना और जो मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर तो हमें पता है ये सबक्यूटेनियस है और ये इंटीरियर साइड के ऊपर है, और लेटरल बॉर्डर जो होता है ना उसको हम इंट्रोसिस बॉर्डर ऑफ टिबिया कहते हैं। इंटीरियर बॉर्डर और इंट्रोसिस बॉर्डर, हाँ जी बताएं बच्चे, जी बच्चे बोले। जो इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर इंट्रोसिस बॉर्डर है ना इसके दरमियान जो है ना वो लेटरल सरफेस ऑफ टिबिया है। दिस वन, दिस इज लेटरल सरफेस ऑफ टिबिया, एंड इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है उसको कहते हैं मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया। ठीक है, हमारे पास मीडियल सरफेस जो कि मीडियल साइड के ऊपर है, ये हमारे पास जो है ना राइट साइड की टिबिया है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग ओपन कर लें कि ये राइट साइड पे है। आप अपना राइट साइड का क्रॉस सेक्शन सोचेंगे ना तो इंटीरियर बॉर्डर के ऊपर आप फिंगर रखेंगे ना तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा ना उसके दरमियान जो सरफेस होगी मीडियल सरफेस होगी। ठीक है, जो फिबुला के साथ जो बॉर्डर होगा वो इंट्रोसिस बॉर्डर होगा और वो लेटरल सरफेस होगी, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर कोई नहीं है यहाँ पे, मीडियल बॉर्डर और इंट्रोसिस बॉर्डर के दरमियान सरफेस होगी ना उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया। अभी मैं आपको बुक दिखाती हूँ ना तो आपको कुछ ज्यादा सही तरह से समझ आ जाएगी, आई होप सो। अभी मैं आपको ना कुछ जी बच्चे so this is right here. Okay. First of all this is interior side क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना टिबियल बर्कल आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अपर एंड, दिस शेफ्ट, दिस इज लोअर एंड। लोअर एंड के साइड पे यहाँ पे थोड़ी ही प्रोमिनेंट सा मार्क होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट सा मार्क होता है। ठीक है, लोअर साइड के ऊपर जो कि एक बाहर को ना निकला हुआ है। ठीक है, ये जो होगा हमारे पास क्या है, हमारे पास मीडियल मेलियोलस है। ठीक है, मीडियल मेलियोलस को आपने हमेशा मिडिल साइड के ऊपर रखना है। तो जब आपने टिबिया पकड़नी है ना आपने ऐसे पकड़नी है, दिस इज टिबिया ऑफ राइट हैंड, राइट साइड, एंड दिस इज इन द राइट हैंड। अपर एंड हमारे पास आ जाता है, अपर एंड के ऊपर हमारे पास 2 कंडाइल्स है। दिस इज मीडियल कंडाइल, जो मीडियल साइड पे होगा मीडियल होगा, जो लेटरल होगा वो लेटरल होगा। ठीक है, ये जो
इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, ठीक है, दिस इज इंटरकॉन्डाइलर एरिया। यहाँ पे 2 टबरकल्स है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये एक पीक है, ये सेकंड पीक है, ठीक है। जो मीडियल मिलियोलस के साथ आएगी उसको हम क्या कहेंगे, मीडियल एमिनेंस, इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। ये क्या होगी, ये लेटरल इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस होगी, ठीक है। तो जो है हमारे पास यहाँ पे ये मीडियल साइड है ना, ये लेटरल साइड है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ना अंदर को हुआ है, जहाँ पे जो हमारे पास आती है, क्या आती है हमारे पास, फेबुला आती है, ठीक है। यहाँ पे फेबुलर हेड आके अटैच होता है लाइक दिस। तो दिस इज फेसर फॉर फेबुला, ठीक है। अभी हमारे पास जो है ना, इसी के ऊपर हमारे पास जर्डीज टुबरकल आता है, ठीक है। दिस इज जर्डीज टुबरकल। आई डोंट नो मैं इसको सही तरह से दिखा सकती हूँ कि नहीं, बट दिस इज ओके, ठीक है। बिल्कुल जहाँ पे फेसेट होगा ना उसका टिबिया का, फेबुला का, वहाँ उसके ऊपर ही ना जर्डीज टुबरकल होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है इसका टिबियल ब्रॉस्टी है, जहाँ पे हमारे पास क्या आता है, पेटेलर लिगामेंट आता है, ठीक है। पेटेलर लिगामेंट किससे बनता है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल से बनता है, जो कि 4 मसल से बनके बनता है, बैसा फेमोरस, वास्टस लेटरालिस, मीडियालिस एंड मेडियालिस। तो ये जो होगा ना यहाँ पे पेटेलर लिगामेंट आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना अपर एंड जो है हमारे इंटीरियर साइड पर डन है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या है, जर्डीज टुबरकल है, जो ब्रॉस्टी है, ठीक है, फेसेट फॉर फेबुला है, और आपके पास आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, दिस इज आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जिसके ऊपर मीडियल कॉन्डाइल है, लेटरल कॉन्डाइल है, इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस है, जहाँ पे हमारे पास 2 टुबरकल्स है, मीडियल टुबरकल है, लेटरल टुबरकल है, जिसको हम इंटरकॉन्डाइलर टुबरकल्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई बोल पड़े? नो मैम। ठीक है। No, ma'am. तो ये हो गया इंटीरियर साइड पे अपर एंड। अभी आ जाते हैं हम पोस्टीरियर साइड के ऊपर, ठीक है। पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास जो है ना, दिस इज सोलियल लाइन, ठीक है। दिस इज सोलियल लाइन, जिस लाइन के ऊपर थोड़ा सा मार्क हुआ है ना, ये लाइन मार्क हुई हुई है ना, दिस इज कॉल्ड सोलियल लाइन। ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास लेटरल साइड से मीडियल साइड की तरफ आती है, ठीक है। यहाँ पे सोलियल मसल लगता है, अटैच होता है, और ये जो है ना दिस वन, दिस इज न्यूट्रिएंट फॉरमेन, ठीक है। यहाँ पोप्लीटियल आर्टरी जो है ना, वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी प्रोवाइड करती है, जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है टिबिया के ऊपर, ठीक है। दिस इज न्यूट्रिएंट। अभी हमारे पास सिर्फ पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर हमारे पास सिर्फ ये लाइन ही है, इतनी खास और कुछ नहीं है इसके पास। अब आ जाते हैं हम शेफ्ट के ऊपर, ठीक है। दिस इज अपर एंड, दिस इज लोअर एंड, और दरमियान में जितना भी कुछ होगा वो शेफ्ट है। अभी हमारे पास जो है ना टिबियल टुबरकल के ऊपर से जो एंटीरियरली साइड के ऊपर जो आ रहा है ना, ये बॉर्डर जो है बहुत शार्प किस्म का है, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये क्या है, इंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। हमारे पास अभी ये जो है हमारे पास लेटरल साइड है ना, तो ये यहाँ पे जो है ये इंट्रोसियस बॉर्डर है, ठीक है। ये जो है इंट्रोसियस बॉर्डर है, और ये जो है ना हमारे पास मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर इतना शार्प नहीं है, ये थोड़ा सा राउंड है, ठीक है, इतना शार्प नहीं आता, ठीक है। तो ये जो है ना ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ये पूरी ऐसे ट्राइंगल बन जाएगी अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करके देखें तो, ठीक है। इंटीरियर बॉर्डर आ गया। अब ये इंटीरियर बॉर्डर है, तो ये जो है इसकी लेटरल सरफेस है, तो सॉरी इंट्रोसियस बॉर्डर है, जिसको हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं, और इसके दरमियान जो सरफेस है ना, इसको कहते हैं इंट्रोसियल लेटरल सरफेस, ठीक है। अभी मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास लेटरल सरफेस। और जो हमारे पास मीडियल सरफेस है ना, वो ये वाली है, जो कि इंटीरियर मीडियल की तरफ जाती है, और ये मीडियल सरफेस है, और ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। तो ये मीडियल बॉर्डर हो गया, मीडियल सरफेस होगी इन दोनों के दरमियान, और ये इंट्रोसियस बॉर्डर हो गया, तो इंटीरियर बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर के दरमियान हमारे पास इंट्रोसियस सरफेस होगी। अब हम पोस्टीरियर साइड पे अगर आ जाते हैं ना, जहाँ पे न्यूट्रिएंट फॉरमेन पड़ा है, तो यहाँ पे जो है ना ये पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर से इंट्रोसियस बॉर्डर के दरमियान जो है ना, वो पोस्टीरियर सरफेस है,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। बॉर्डर कोई नहीं है लेकिन हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोअर एंड के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस इज कॉल्ड मीडियल मेलियोलस। ठीक है, अब जो नीचे ये वाली सरफेस है ना, इसको कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। इसने साथ लगना जाकर टैलेस के साथ लगता है। टैलेस जो होती है ना, वो बोन है। ठीक है, जहाँ पे ये एंकल जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ मीडियल मेलियोलस। ठीक है, एंड दिस इज आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टिबिया, लोअर एंड। और ये हमारे पास आ जाए है, क्या आ जाता है, फिबुलर नॉच। अब ये फिबुला जो है ना, ऐसे आके अटैच होगी ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे करके ये जॉइंट बनाएंगे। लेटरल जो मेलियोलस होता है ना, वो थोड़ा सा नीवा होता है मीडियल मेलियोलस से। ठीक है, तो दिस इज फिबुला एंड दिस। तो फिबुला ने यहाँ पे आके ना अपनी जगह बनानी। जी बच्चे, कोई बोले? ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिबुलर नॉच। ठीक है, और हमारे पास इसी नीचे लोअर एंड पे क्या, ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? आगे चले, एनी क्वेश्चन अभी तक? किसी को कोई क्वेश्चन है अभी, को पूछ ले बच्चों। मैम डिजिटल बॉर्डर दोबारा से बता दें इसका। जी बच्चे, जी बच्चे, मिस इसका डिजिटल जो बॉर्डर है ना सारा रिपीट है। अच्छा, डिजिटल पार्ट इसका जो है, ठीक है। over here this is the distal part। ठीक है, this one, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज मीडियल मेलियोलस, जो कि मीडियल साइड के ऊपर हमेशा इसको मीडियल साइड पे रखते हैं। दिस इज आर्टिकुलेटिंग सरफेस, दिस वन इज आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ये मीडियल मेलियोलस की आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ये वाली, और ये टिबिया की आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। ठीक है, और ये ऐसे आ जाती है, तो यहाँ पे जो है ना लेटरल साइड के ऊपर फेबुलर फेसेट पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ना फिबुलर नॉच है। ठीक है, दिस इज फिबुलर नॉच। ठीक है, और ये दो फेसेस हैं, ये मीडियल मेलियोलस की आर्टिकुलेटिंग सरफेस है और ये टिबिया की आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। यहाँ पे आके टैलस लगती है जो कि एंकल जॉइंट बनाता है, और यहाँ पे आके जो है फिबुला अटैच होती है, दिस वन, ये फिबुलर नॉच है। इसको हमेशा ऐसे पकड़ना है, और यही कुछ है लोअर एंड में। थैंक यू मैम। मैम जी बच्चे, मैम इंटीरियर और लेटरल प्रॉक्सिमल बॉर्डर्स इसके बता दें दोबारा से। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास जो है ना ये टिबिया है, तो हमारे पास जहाँ पे टिबिया वर्टिकल होगा ना, दिस वन, ठीक है, वो जो नीचे जाएगा ना बिल्कुल जैसे जिसे नीचे। ठीक है, this tibial tubercle goes downwards, this is called interior border। ठीक है, ठीक है, अब ये इंटीरियर बॉर्डर है तो इसको हम इंटीरियर रखेंगे। ठीक है, अभी ये मीडियल मेलियोलस है तो इसके साथ साथ बॉर्डर जाएगा वो क्या होगा, मीडियल बॉर्डर होगा, और जो लेटरल साइड या फिबुला के साथ जो जाएगा वो होगा इंट्रोसियस बॉर्डर, जहाँ पे फिबुला नहीं लगना है। इंटीरियर इंट्रोसियस बॉर्डर के साथ भी होगी वो होगी इंट्रोसियस सरफेस, ये इंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के साथ जो होगी वो मीडियल सरफेस होगी, और पोस्टीरियर सरफेस होगी ना वो इंट्रोसियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान होगी, दिस जहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन है। ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है ना वो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर है। ठीक है, और इंटीरियर सरफेस कोई नहीं है, इंटर बॉर्डर है, और इसके मीडियल साइड के ऊपर मीडियल सरफेस है और उसकी लेटरल साइड पर इंट्रोसियस सरफेस है। ठीक है, कुछ और रिपीट करना है बच्चों, क्या आगे चले? जी बच्चे, एवरीथिंग इज क्लियर? सो अभी हम आ जाते हैं फिबुला के ऊपर। Fibula is a slender fibula lies posteriorly to the tibia and is firmly attached by the tibial syndesmosis.
सिनेस्मोसिस हम इसको कहते हैं जो चीज जो होती है ना वो जॉइंट ना बनाए लेकिन वो एक दूसरे के साथ अटैच हो, ठीक है, विच इंक्लूड्स इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, और इंट्रोसिस मेम्ब्रेन इसके साथ अटैच हो रही है, ठीक है, इसको इसके साथ ये इंक्लूड होगी। द फिबुला नॉट वर्क इन द वेट बेयरिंग, ठीक है, हमारा वेट जो होता है वो सिर्फ टिबिया के साथ है क्योंकि हमारा नी जॉइंट ना सिर्फ टिबिया ने बनाना है और वहीं से वेट जो है ना वो पर होगा। इट सर्व्स मेनली फॉर द मसल अटैचमेंट्स, और ये फिबुला जो है वो मसल अटैचमेंट्स के लिए प्रोवाइड द डिस्टल अटैचमेंट इंसर्शन ऑफ वन मसल एंड प्रॉक्सिमल अटैचमेंट रीजन ऑफ द 8 मसल्स, ठीक है। शाफ्ट जो होगी ना फिबुला की मैम twisted तो होगी। राइस प्लीज। बच्चे उसमें कुछ आया ही नहीं तो मैं क्या ऐसा करूं, मैं तो वो स्लाइड वैसे ही निकाल देनी थी। अभी आप शेफ्ट पे आ जाए। शेफ्ट ऑफ द फिबुला इज ट्विस्टेड एंड मार्क्ड बाय द साइड्स ऑफ द मसल अटैचमेंट्स, यहाँ मसल अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके भी इंटीरियर इंट्रोसियस और पोस्टीरियर बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, और 3 सर्फेसेस होती हैं, मीडियल, पोस्टीरियर, लैटरल, सेम लाइक टिबिया, ठीक है। अभी आप डायग्राम देख लें, ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये फिबुला का इंटीरियर सरफेस है, ठीक है, ये जो है फिबुलर हेड है, ये एपेक्स है, हेड है, ये नेक है, ठीक है। ये लेटरल सरफेस है इसकी, बिल्कुल इंट्रोसियस सरफेस है ना उसको हम लेटरल सरफेस कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इंट्रोसियस बॉर्डर भी वही है, ठीक है, और बॉर्डर के साथ साथ सरफेस है ना वो इंट्रोसियस सरफेस है और वो लेटरल सरफेस भी कहलाती है। और जो है इसका जो है ना ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, दिस इज मिडियल क्रेस्ट, यहाँ पे मिडियल साइड के ऊपर जो होगी ना वो मिडियल क्रेस्ट होगी, और या मिडियल बॉर्डर भी कह सकते हैं जिसको, और मिडियल क्रेस्ट और उसके साथ जो है ना लेटरल वो आएगी हमारे पास लेटरल सरफेस। अभी मैं आपको ना इसकी दिखा देती हूँ फिबुला भी, ताकि आपको ना थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि क्या है। ओके So this is fibula. Just like tibia, it have a little. यहाँ पे फिर से दोबारा से थोड़ा सा ना आई हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये बाहर को आई हुई है थोड़ी सी, दिस इज कॉल्ड लेटरल मेलियोलस, ठीक है। आप अपना लेटरल मेलियोलस अपना खुद भी टच करके देख सकते हैं, आपके एंकल के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनका जो लेटरल मेलियोलस है ना उसके ऊपर जो स्किन होती है ना वो फ्रिक्शन से जो ब्लैक हो जाती है, ठीक है, जिनकी ब्लैक होती है ना वो लेटरल मेलियोलस के ऊपर से होती है, ठीक है। दिस इज लेटरल मेलियोलस ओवर हियर, इसको आपने लेटरल साइड के ऊपर रख लेना, इसको जो है ना आपने साइड पे रख लेना, ठीक है। सिर्फ इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन आपने पता करनी है ना, तो आपने इसको साइड पे लेटरल साइड के ऊपर रख लेना। तो दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ फिबुला, ठीक है। ये हेड जो होगा ना ये हमारे पास ये टिबिया के साथ जो है ना ऐसे करके आके अटैच होगा, ठीक है। हेड जितना भी प्रोमिनेंट, जिस तरह आप लोगों का है ना सबसे प्रोमिनेंट, और जो नेक होती है वो पतली होती है, ठीक है। तो जहां से पतलापन शुरू होगा ना उसको हम कहेंगे नेक। तो ये जो नेक होगी ना ये हेड है तो ये नेक है, ठीक है। यहाँ के ऊपर जो है ना सर्कमफ्लेक्स मोरल नर्व्स होती है ना वो पास करती है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल, कि अभी हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ना आपने क्या कहते हैं, अब इसका हेड हो गया, ये नेक हो गया, अभी इसकी शेफ्ट पे आ जाते हैं। शेफ्ट जो है ना इसकी, ये जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है ना यहाँ पे दो लाइंस हैं, ठीक है। ये बॉर्डर सेम नहीं आता, एक बॉर्डर नहीं करना हुआ, ये 2 लाइंस हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे इंट्रोसियस बॉर्डर, इन दोनों लाइंस को, ठीक है। ये जो दोनों लाइंस होंगी ना ये हमारी होंगी इंट्रोसियस बॉर्डर, ठीक है। और जो इंट्रोसियस बॉर्डर अभी हमारे पास ये नेक हो गई, ये इंट्रोसियस बॉर्डर हो गया, ये हो गया इसका इंटीरियर बॉर्डर जो इंटीरियर साइड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ना ये मीडियल क्रेस्ट आ रही है, ठीक है, ये जो बिल्कुल प्रोमिनेंट सी आ रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मीडियल क्रेस्ट और मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो मीडियल बॉर्डर आ जाता है हमारे पास, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर के दरमियान इतनी ज्यादा सरफेस है नहीं वैसे, पर इस सरफेस को हम ना पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, थोड़ी सी है पर है जरूर,
तो और जो इंटीरियर और मीडियल साइड के साथ जो है ना वो मीडियल बॉर्डर आ जाएगा, और जो लेटरल बॉर्डर होगा ना जो कि टिबिया के साथ अटैच है, वो सॉरी जो मीडियल बॉर्डर है ना वो टिबिया के साथ अटैच है, और लेटरल बॉर्डर जो है ना वो साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो उसके दरमियान जो सरफेस होगी ना वो क्या है, वो कहलाएगी मीडियल सरफेस, और जो लेटरल साइड के ऊपर आएगी वो लेटरल सरफेस कहलाएगी, ठीक है। बस एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको पकड़ना आना चाहिए होता है, कि बंदे को ना अंदाजा रहे कि हाँ मुझे ना, जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ लेते हैं ना तो फिर आप अपना अपना सोचें कि भाई आपकी अपनी बोन कैसे पड़ी है यहाँ, ठीक है। आपने लेटरल मेलियोलस को लेटरल साइड के ऊपर रख दिया, ठीक है, और जो लेटर होगा ना वो ऑब्वियसली इस साइड के ऊपर समझ लेंगे यहाँ पे जो है ना, अभी जैसे ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये अभी हमने ऑस्पी ली है अभी पिछले दिनों, तो ये मतलब हेड पे लग गया, इसका मतलब है ये 4 पे ना इसका हेड है, हेड ऑफ फिबुला, ठीक है। तो जो है ना अभी आप लेटर सरफेस, ये लेटर मेलियोलस है, लेटर साइड के ऊपर आ गया, हेड यहाँ पे आ गया, और ये शेफ्ट है, और इंटीरियर साइड बॉर्डर जो इंटीरियर साइड में जो बॉर्डर होगा वो इंटीरियर होगा, तो 2 किस्म के बॉर्डर होंगे, वो जो होंगे वो इंट्रोसिस बॉर्डर होंगे, और जो पोस्टीरियर साइड पे होगा ना वो मीडियल साइड पे जो होगा ना वो होगा मीडियल क्रेस्ट, ठीक है। और इसका एंड इसके जो होगा यहाँ आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ठीक है। ये लेटरल मेलियोलस है ना, तो ये जो सरफेस होगी ना यहाँ पे ये फिबुलर नॉच होगी, फिबुलर नॉच के अंदर जाके अटैच होगी, जस्ट लाइक दिस। तो ये जो होगा ना ये ऐसे बन जाएगा, तो हमारी फिबुला भी खत्म हो गई है। किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है। मैम अभी ये जो जो है ना, हमारा जी मैम बच्चे, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका हेड की तरह, लाइक हेड भी सेम टाइप की मतलब लग रही है, और नीचे वाली जो है वो भी सरफेस सेम टाइप की लग रही है, मतलब जिस इसका तरह से हेड कैसे पता प्रोमिनेंट है, चलेगा? ऊपर वाली भी और नीचे हाँ वाली भी दोनों हाँ, इससे प्रोमिनेंट जो है। होता है ना हमारे पास जो फिबुलास पड़ी हुई है ना हमारे डीएच में, तो ना उनका हाल थोड़ा सा ऐसा ही है, तो इसका ना थोड़ा सा आपने हेड जो है ना हमारे पास, ठीक है, हमारे पास हेड इसका ना थोड़ा सा हेड जो है ना आगे से स्मूथ होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्मूथ है, और ये जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, ये थोड़ी सी ना पीक बनी हुई यहाँ से, ये खराब हुई हुई है, ये बन जाती थी, ये खराब है, अक्सर सारी खराब थी ऑलमोस्ट, लेकिन ना आपने थोड़ा सा ना ज़हन में रखना है कि जो हेड है ना वो 10 से ज्यादा बड़ा है लोअर एंड से, ठीक है, ये आप देख लें, ये जो है ना ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आता ना वहां से पकड़ें टिबिया, जब आप टिबिया पकड़ेंगे ना मीडियल मेलियोलस इसका तो नजर आ रहा है ना, ठीक है, इसको रखें मीडियल साइड के ऊपर, और अगर आप हेड लगा के देखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो होगा ये इतना प्रोमिनेंट नहीं आएगा, आई थिंक इसका हेड जो है ना ये वाकई हेड ये है, दिस वन, वैसे ना इसका हाल तो बुरा है बोन का, दिस वन इज लाइक दिस, ये मुझे आर्टिकुलेटिंग सरफेस लग रही है, नहीं ये हेड ही है, हेड के ऊपर पता है क्या है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस नहीं है, 4 लिखा हुआ है ना, ये हेड ही है, बिकॉज यहाँ पे कोई आर्टिकुलेटिंग सरफेस नहीं है, पर यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी खासी आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनी है, ये बिल्कुल ऐसे, तो आप आर्टिकुलेटिंग सरफेस ध्यान में रखनी है, ये इतना प्रोमिनेंट है कि उसी वक्त पता चल रही है, और ये हेड के ऊपर कोई आर्टिकुलेटिंग सरफेस नहीं है, कोई सरफेस नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहाँ पे, अभी मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगी यूट्यूब का, ठीक है, उसके अंदर ना बड़ी अच्छी फिबुला आई है, तो वो फिर आप देख लेना एक दफा फिर से। तो इसके बाद क्लिनिक जी बच्चे, मैम ये जो लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर है ना, इसको जरा फिब्यूला के नहीं टिबिया के साथ लगा कर ना बता दें, कंफ्यूजन बहुत हो रही है इसमें। बच्चे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वैसे इतना पूछते नहीं, अगर आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़नी आ गई है तो
इतना बहुत होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, हमारे पास वैसे भी बहुत टाइम है। ये देखिए, दिस वाज हेड, ठीक है, ओवर हियर हेड यहाँ पे लग गया, ये हमारे पास मीडियम में वाले सा आ गया, ये लेडीज, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। अभी आप इसके बैक पे आएंगे ना, ये बैक पे आएंगे ना, ये जो है ना इंट्रोसिस बॉर्डर, दिस वन जो बैक आ रहा है, यहाँ से इंट्रोसिस मेम्ब्रेन निकलती है और ये टिबिया के इस बॉर्डर के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। ये बॉर्डर है, ये इसके साथ आके अटैच हो जाती है इस मेम्ब्रेन से, ठीक है। और मैम ये इंटरऑसियस बॉर्डर फिब्यूला पे मीडियल है, यहाँ पे लेटरल है। से ये जो होगा ना मीडियल होगा, बल्कि ये थोड़ा सा ना पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाता है, बिल्कुल लेटरल नहीं, ये मीडियल पे होगा। ऑब्वियसली अगर टिबिया के लेटरल पे है ना तो उसके मीडियल पे होगा, ठीक है। अब ये राइट साइड की टिबिया है ना, तो ये मीडियल मेलियोलस, इसका जो है, इसके जो इंट्रोसिस मेम्ब्रेन है वो ये है, तो इसकी जो होगी ना वो इसकी लेटरल साइड पे होगी, ठीक। फिब्युला मैम ये की जो लेटरल आपकी स्लाइड है, मैम ये जो आपकी स्लाइड है ये खुली हुई है, जी मैम बच्चे, इसमें इसको लेटरल सरफेस लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ, वो पोस्टीरियर साइड है। हाँ वो पोस्टीरियर है, ये देखो पोस्टीरियरली तो वो लेटरल साइड के ऊपर आ जाएगी ना, और इंटीरियर साइड के ऊपर वो मीडियल सरफेस पे आ जाएगी। सही है मैम। हाँ ठीक है, अभी एक दफा खुद भी पढ़ लेना, मैंने स्लाइड शेयर की हुई है वैसे, अभी एक ही दफा में बड़ा मुश्किल होता है इसको बताना। टिबिया हमारे पास 3 किस्म के फ्रैक्चर्स होते हैं टिबिया के, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है और डायगोनल फ्रैक्चर होता है, ठीक। फर्स्ट कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है कि इट इज अ इंजरी टू इन विच ए ब्रोकन बोन। अच्छा, कोई भी ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर जो है ना बोन स्किन से बाहर निकल आए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये है कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। टिबिया जहाँ पे नैरो होती है जंक्शन पे, ये आप लोग खुद ही पढ़ लेना नेक्स्ट, अभी मैं सिर्फ इसको डायग्राम दिखा देती हूँ। जस्ट लाइक दिस, ये जो है ना इसकी बोन फ्रैक्चर होके बाहर स्किन से निकल आई है, तो दिस इज ब्रोकन स्किन और कंपाउंड फ्रैक्चर। और इसके एक्सरे जो होता है ना कुछ ऐसा नजर आता है क्योंकि ये स्किन से आ चुका है, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है ना, जैसे होता है हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है ना वो होता है ट्रांसवर्स मार्च। अच्छा, काफी फीमेल्स होती है ना जो खाना पीना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं होता, या मॉडल्स होती हैं जो जिनका BMI जो होता है ना 18.5 से कम होता है, ठीक, उनके ऊपर ना ये ज्यादा स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है क्योंकि उनकी हड्डियों में इतनी जंग नहीं होती, तो खाना वो खाती नहीं है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये इस स्लाइड के ऊपर आपको ना ये थोड़ी सी लाइन नजर आ रही है, इसको ट्रू फ्रैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है ना वो टाइनी क्रैक होता है बोन के अंदर, ठीक है। कि मतलब इसका मतलब ये कि ना जब ये फीमेल उन्होंने दिखाई हुई है, इससे थोड़ा सा ना याद रखेंगे कि ये जो फीमेल्स होती है ना अक्सर होती हैं जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा स्पोर्ट में या ट्रायथलॉन और या मैराथन में होते हैं ना, तो उसमें ये स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आते हैं कि इसके अंदर ना टाइनी क्रैक्स बढ़ जाते हैं, और ये कि इसकी जो हम करते हैं ना, क्या कहते हैं, इसका इलाज ही होता है कि रेस्ट होता है, ठीक है, पेशेंट खुद ही रेस्ट करे और कोई इसका ऑपरेशन वगैरह नहीं होता, ठीक है। डायगोनल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, डायगोनल फ्रैक्चर्स के अंदर ना हमारे पास क्या कहते हैं, सॉरी, ये अक्सर जो लोग सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग उसको कहते हैं, जो जहाँ पे हम ओशन बीच वगैरह के और जो समंदर की लहरों पे वो करते हैं, मुझे नहीं पता अब उसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये स्पोर्ट्स होती है हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में काफी मशहूर, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर कि यहाँ पे डायगोनल फ्रैक्चर्स यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसको हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डायगोनल फ्रैक्चर, कि जो एक डायगोनल एक साइड से शुरू हो रहा है, दूसरी साइड पे खत्म हो रहा है, दो बोन्स अंदर आ रही हैं और
इसमें क्या होता है कि एक एंगल पे, ठीक है, एक एंगल बन रहा है, इसको हम इसलिए डायगोनल कह रहे हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स, और ये ट्रांसवर्स होगा ऑब्वियसली के जो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल फ्रैक्चर होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे बूट टॉप। बूट क्या कहते हैं, बूट उसको कहते हैं कि जो मैंने अभी बताया ना आपको, जो समंदर पे जाके वो करते हैं, ऊपर स्काइंग करते हैं या सर्फिंग करते हैं, उसके ऊपर जब आप पाँव रखते हैं ना, आपको अपनी थाइस जो होती है ना वो थोड़ी सी एंगल पे रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो आपका एंकल जॉइंट होता है ना, सारा वजन उसके ऊपर पड़ता है। अगर वो टूट जाए तो फिर ये हाल होता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स ओवर हियर, ठीक है। दिस इज मार्च और स्ट्रेस फ्रैक्चर। यू कैन सी यहाँ पे कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना क्रैक है, ठीक है। यहाँ पे रीडर व्यू बता दिया उन्होंने, लेकिन ओवर हियर यहाँ ट्रांसफर्स देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसफर्स है। सो दैट वाज हम कंपाउंड फ्रैक्चर की क्या ट्रीटमेंट? बच्चे इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, हम ना ओपन रिडक्शन भी करते हैं, क्लोज रिडक्शन भी करते हैं। क्लोज रिडक्शन नहीं होगी इसमें, ओपन रिडक्शन होगी। ओपन रिडक्शन किसको कहते हैं, जिसके अंदर ना ओपन रिडक्शन के अंदर ना आप जो कि ये आर्थोपेडिक वाले सर्जन होते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में जाके इसको स्किन तो ऑलरेडी पर्स हो चुकी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर ना वो जो सरिया डालते हैं, जिसको कि पता नहीं क्या कहते हैं, अभी ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो जो आप इसको स्ट्रेंथ करते हैं ना, इसके अंदर डाल के रॉड्स डाल के, हाँ एंड जी, पिंस। रॉड्स डाल के, हाँ जी। तो ये रॉड डाल के इसको स्ट्रेट करते हैं, फिर प्लास्टर और पेरिस चढ़ा के इसको बस स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास एक और लेक्चर भी है, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। लेट मी मुझे लगता नहीं है कि ये होगा हमारा पर। टिबिया फिबुलर जॉइंट, अभी हमने टिबिया भी पढ़ लिया, फिबुला भी पढ़ लिया, तो आई विल ट्राई कि हम ये टिबिया फिबुलर जॉइंट भी कवर कर लें। इसमें कोई जॉइंट खास होता नहीं है, इसका कोई खास इतना रोल, तो लेट मी डू दैट इन अ क्विक वे। डॉक्टर तुबा का था लेक्चर, बट कल हमारा हो नहीं सका, तो इस वजह से हम आज हमने अकोमोडेट किया इस लेक्चर को भी। Over here we have the joints of the leg, tibiofibular joint. This joint is called tibiofibular joint, जहाँ पे tibia और fibula आपस में attach हो रही थी इंटीरियर साइड के ऊपर, ठीक है, हो सॉरी अपर एंड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पोस्टीरियर लिगामेंट है, यहाँ पे इंटीरियर लिगामेंट है। ऑब्वियसली किसी भी बोन को उसने प्लेस कर लिया, यहाँ पे कोई लिगामेंट्स होंगे, ठीक है। इंफीरियरली यहाँ पे हमारे पास डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट है, यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट है। जो पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर लिगामेंट्स होंगे, इंटीरियर साइड पे इंटीरियर लिगामेंट्स होंगे, ठीक है। प्रॉक्सिमस को हम क्या कहेंगे, जो अपर एंड का होगा, ठीक है। आर्टिकुलेशन होती है बिटवीन द लेटरल कंडल ऑफ टिबिया। हमारे पास फिबुला जो है वो हमारी लेटरल साइड के ऊपर पड़ी, ठीक है। तो हमारे पास लेटरल कंडाइल जहाँ पे टिबिया को का होगा, वहाँ हेड ऑफ फिबुला अटैच होगा आके। यहाँ पे साइनोवियल प्लेन एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। इसका टाइप इसको कहेंगे साइनोवियल प्लेन और ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग किसको कहते हैं, ग्लाइड का क्या मतलब है इंग्लिश में? जी हरमैन हरमैन ग्लाइड का क्या मतलब होगा? मैं आपका नाम ठीक ले रही हूँ, मुझे भी फिलहाल इतना बच्चों का नाम आते नहीं है। या मोहम्मद तलहा नाम आता है,
जी शहरियार में आप किधर हैं? शहरियार में आप यहाँ पे हैं? चलो इसको मैं क्या करूँ, हम अपनी स्लाइड पे ही आ जाते। over here we have capsule जिसको हम कहते हैं अटैच होता है कि margins of articulating synovial membrane होती है इसके दरमियान, लिगामेंट्स होते हैं इसके अंदर, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन होती है जो शाफ्ट ऑफ टिबिया और फिबुला को आपस में जोड़ती है, ठीक है। ओवर हियर यू कैन सी दिस इज इंट्रोसिस मेम्ब्रेन जो अभी मैंने आपको बताई थी, जो दो इंट्रोसिस बॉर्डर जो कि टिबिया और फिबुला के दोनों इंट्रोसिस बॉर्डर के दरमियान ये मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है। अभी नर्व सप्लाई जो होती है कॉमन पेरोनियल नर्व, इसको नर्व सप्लाई करिए, नर्व टू द पोप्लिटियस आता है, यहाँ पे पोप्लिटियस मसल भी पड़ा होता है। और मूवमेंट जो होती है ना, ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ग्लाइड करना क्या होता है, एक दूसरे के साथ ना मतलब एक दूसरे को पास करना, लेकिन इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है कि जिस तरह से हमारे अपने हैंड्स की मूवमेंट होती है या किसी और चीज की मूवमेंट होती है, इस तरह की मूवमेंट नहीं है। स्लाइड मूवमेंट होती है डॉर्सल फ्लेक्शन ऑफ फुट के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टल फिबुलर टिबियोफिबुलर जॉइंट आ जाता है। यहाँ पे भी ट्रांसवर्स टिबियोफिबुलर लिगामेंट है, यहाँ पे टीयर टिबियोफिबुलर लिगामेंट है। ओवर हियर यू कैन सी दीज ऑल द लिगामेंट्स, ये आपको याद ही करने हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ बता नहीं सकती कि दीज आर द इंट्रोसियस लिगामेंट्स। जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बनाएंगे उसको हम इंट्रोसियस मेम्ब्रेन कहेंगे, जो लिगामेंट्स होंगे उसके दरमियान वहाँ पे थिक बैंड होगा उसको हम इंट्रोसियस लिगामेंट्स कहेंगे। और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। Interior tibiofibular ligament over here. This is the tibiofibular posterior tibiofibular ligament over here. यहाँ पे ये भी इंटीरियर है, ये भी पोस्टीरियर है, अपर एंड पे भी और लोअर एंड पे भी, और दरमियान में क्या है, इंटरस्टिस मेम्ब्रेन है। अब इसका भी यही टाइप है, ये फाइब्रस टाइप है। लोअर जो टिबियोफिबुलर लिगामेंट है, इसकी नर्व सप्लाई जो होती है ना वो डीप पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व करवाती है। ब्लड सप्लाई जो होती है वो लेटर जेनिकुलर आर्टरी और इंटीरियर टिबियोफिबुलर आर्टरीज आती है, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं ग्लाइडिंग विंडो होती है। अभी ये जो है ना हमारी डॉर्सी फ्लेक्शन हो रही है, प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है, जो टिबिया और फिबुला के दरमियान जो होगी ना मूवमेंट, आपको पता है टिबिया से जो है ना अटैच होती है फिबुला से काफी अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको छोड़ती नहीं है कहीं पे भी, बस ये ग्लाइड ही कर सकती है दूसरे के साथ। बाकी इसके अंदर कुछ इतना खास है नहीं था, लेकिन बस टिबिया और फिबुला के आपको बोनी फीचर्स आने चाहिए ताकि आपकी मसल अटैचमेंट जो है वो थोड़ी सी समझ आ जाए। अभी डॉक्टर तूबा जो है ना वो आपको इंशाल्लाह भी कराएगी इसकी मसल अटैचमेंट। अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। एनी क्वेश्चंस? जी जी आर कोई बोल नहीं पड़े। एनी मैम क्वेश्चंस? इस टिबियोफिब्युलर जॉइंट की नहीं समझ आई। बच्चे इसमें इतना खास कोई जॉइंट है नहीं, ये जिससे समझ नहीं आई, लेकिन डॉक्टर फिर तुबा भी से कहूंगी अगर रिवाइज करवा दे थोड़ी सी। लेकिन बस यही है कि इसकी इंट्रोसिस मेम्ब्रेन तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है जो इंट्रोसिस बॉर्डर के साथ है। ऊपर से टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स आते हैं, एक इंटीरियर है एक्सटीरियर है, जहाँ पे टिबिया और फिबुला के आपस में अटैच करता है, और इन मूवमेंट ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट है। बाकी आर्टरीज और नर्व सप्लाई तो आपने याद करनी है खुद, उसको मैं क्या समझा सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी सी ना बोन दोबारा दिखा देती हूँ। आपका लेक्चर का अगर आ जाए ना लिंक तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैम ये हमारी ब्रेक होती है 15 मिनट की। बस ठीक है, फिर 15 मिनट ही पढ़ लो। नहीं मैम। हाँ नहीं यार, बहुत आधा कर घंटा लिया, मैंने समझ लो। ब्रेक ली है तो वो ये जो है अकोमोडेट कर लो। जिसने लेफ्ट करना है वो लेफ्ट कर भी सकता है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो भागम भाग जा रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। ओवर हियर दिस वाज हेड ऑफ फिबुला, ठीक है। तो ये जो फेसेट होगा ना फिबुला का ओवर हियर, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है।
यहाँ पे जो है ना टिबियोफिबुलर लिगामेंट आएगा, ये जो इंटीरियर साइड के ऊपर जो आएगा ना उसको कहेंगे इंटीरियर टिबियोफिबुलर, जो पोस्टीरियर साइड पे आएगा ना वो पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। तो ये जो होगा इसके अंदर ये टिबियोफिबुलर जॉइंट है, और इस जॉइंट के अंदर जो ग्लाइड मूवमेंट कहते हैं इसको, ये एक दूसरे के साथ ऐसे करके जब मूव करेगा ना तो कहेंगे ग्लाइडिंग, ठीक है। तो ये ग्लाइड कर रहा है ऐसे, जब हम इसको फ्लेक्शन करते हैं ना अपने नी जॉइंट, जब हम इसको नी जॉइंट फ्लेक्स करेंगे तो ये जो होगा ना ये फ्लेक्शन होगी, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट ऐसे ग्लाइडिंग मूवमेंट करेगा। अब जो है हमारे पास ये इंटीरियर बॉर्डर है, तो ये इंट्रोसियस बॉर्डर मांगते हैं। तो इंट्रोसियस बॉर्डर यहाँ से जो इस तरफ आएगा ना, इसके दरमियान जो मेम्ब्रेन होगी इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, इसके दरमियान ऐसी जो आएगी, ठीक है। अब नीचे अगर हम आ जाते हैं ना, वही ठीक है, यहाँ पे कॉमन फेबुलर नर्व आ रही है यहाँ पे नेक ऑफ द फीमर के ऊपर, जो कि सप्लाई करेगी इस वाले जॉइंट को भी, जो इंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन टिबियोफिबुलर जॉइंट है, और जो मेम्ब्रेन्स है इन सब को ना ये कॉमन पेरोनियल कॉमन फिबुलर नर्व यही सप्लाई करती है, ठीक है। अब इंट्रोसियस मेम्ब्रेन इसके दरमियान है, वो सारी की सारी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से सारी स्टार्ट होगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, सारी यहाँ तक आएगी, ठीक है। देन जो है ना नीचे आ जाए, ये हमारे पास आ गया इसका बहुत ही फेसेट, ठीक है, फेबुलर फेसेट, और यहाँ पे जो है ये लेटरल मेलियोलस आ गया हमारे पास। ये जब डॉर्सीफ्लेक्शन फुट जो होगा, डॉर्सीफ्लेक्शन या वो करेगा ना ऐसे 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 करेगा, तो हमारे पास ये जो है ना यहाँ पे जो है ना ये ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी, ठीक है। ये जो होगी ना ऐसे करके ग्लाइड करेगी इसके साथ, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है ना टिबियोफिबुलर लिगामेंट जो होगा ना इंटीरियर साइड के ऊपर इंटीरियर लिगामेंट आएगा, पोस्टीरियर साइड के ऊपर पोस्टीरियर लिगामेंट आएगा, ठीक है। तो दिस इज लोअर एंड ऑफ ए टिबियोफिबुलर जॉइंट, दिस इज द अपर एंड ऑफ ए टिबियोफिबुलर जॉइंट, और ये दरमियान में इंट्रोसियस मेम्ब्रेन है, ये इंट्रोसियस बॉर्डर्स है। अभी मैं फिबुला के बॉर्डर्स करा देती हूँ एक दफा। ये हेड है, ये नेक है, ठीक है, और ये जो इंटीरियर साइड के ऊपर आ रहा है, ठीक है, हेड जहाँ से इंटीरियर साइड के ऊपर आ रहा है ये इंटीरियर बॉर्डर है, ये लेटरल मेलियोलस है, इसको लेटरल साइड के ऊपर रखना है, और ये जो दो जो पीछे नजर आ रही है ये इंट्रोसियस बॉर्डर है, और ये इंट्रोसियस मेम्ब्रेन अटैच होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना ये मीडियल क्रस्ट है, ठीक है। तो ये जो इंटीरियर और मीडियल क्रस्ट के दरमियान क्या होगी, मीडियल सरफेस होगी, नहीं इस तरफ है ना मीडियल क्रस्ट होगा, क्योंकि ये मीडियल साइड पे आएगी, ये जो है ना राइट आएगी फिबुला, तो ये मीडियल क्रस्ट इस तरफ आएगी, तो ये मीडियल बॉर्डर आएगा, ये लेटरल सरफेस आएगी, ये मीडियल सरफेस आएगी, पीछे मीडियल क्रस्ट है, और ये इंट्रोसियस सरफेस भी आएगी, जहाँ पे लेटरल साइड के ऊपर जो होगा वो इसका आएगी इंट्रोसियस सरफेस। तो अब बस यही कुछ है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अब नेक्स्ट हम सुबह आपका लेक्चर लेंगे। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन हेरमैन? मैम इसकी सप्लाई बता दें, कौन सी आपने बताई थी आर्टरी? टिबिया की या फिबुला की? दोनों की। दोनों की। टिबिया की जो होती है ना वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है, प्रोवाइड करती है, जो कि क्लीटियल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। और जो फिबुला की जो है ना वो तो मैंने पढ़ाई नहीं है, तो वो आप लोग खुद देखना। जॉइंट्स की जो नर्व सप्लाई है और ब्लड सप्लाई है वो बता देती हूँ। यहाँ पे है दिस वन ओवर हियर, दिस वन, ये कॉम्बिरोनियल नर्व है,
नर्व टू द पॉप्लिटियस, यहाँ पे पॉप्लिटियस मसल पड़ा होता है जो कि पॉप्लिटियल फोसा का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, किधर गया? Where's that slide? मैम जी बच्चे, मैम हमारी 11:30 से 1 बजे तक की क्लास में मैम तूबा ने पढ़ाना है। हाँ जी। ये रही, अभी हमारे पास इसके पेट्रल जेनिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है और इंटीरियर टिबियल रुकेटर आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। ये लोअर एंड का टिबिया फिबुलर जॉइंट को, और फिबुला की जो नर्व सप्लाई न्यूट्रेंट आर्टरी है ना, वो आप लोग खुद पढ़ लेना। मुझे केएलएम में मिली नहीं थी, नहीं तो मैं डाल देती, ठीक है। चले 5 मिनट ब्रेक कर लें, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। टिल देन I hope I cover everything and try my best. चलें।